Okay, we are going to discuss the fourth tool purification, which is charity. Basically, there are two types of worship. Number one, worship performed by the body, and worship performed by the wealth. Ibadat, two types, badni and mali. Ibadat is badniya, for example, salah. Salah is badni, and fasting, badani, performed by body. Okay, jihad, qital, physical fighting, badani. Okay, other one is by wealth, for example, hajj, badani or both. This is comprehensive form of worship. Jihad is also comprehensive form of worship, performed by body and by wealth. Okay, charity or the zakat, this is by wealth. This is ibadat-e mali. Clear it? Charity has basically two types. Number one, obligatory or mandatory charity, which is called zakat. This is obligatory charity, zakat, for every Muslim who possess the wealth which reach to the nisab. Later on we shall define what is nisab as well. Second one is devotional. Devotional charity is called sadaqah. Sadaqah. When you study the articles or the material or the literature about the charity, so you shall find both terms, sadaqah and zakat. Generally, the writers used in place of each other. Sometimes you shall see zakat is meant here for the devotional charity, and sadaqah is meant here for the obligatory charity. So it happens, it depends on the context, what is the context of this text. Otherwise, academically, if we wanted to have difference between the two terms, then zakat is specified for the obligatory and mandatory form of charity, while the sadaqah is known for the devotional charity. Okay. So what is zakat? Zakat in literal sense, it has two meanings: to increase and to purify. To increase, because Allah subhanahu wa ta'ala promised, when you spend a portion of wealth for cause of the deen or to the people who are suffering, who are less fortunate, so Allah promised He shall return to you by multiplying it, by increasing it. Okay, Allah promised. So apparently we calculate that our wealth is decreasing, but Allah promised it is increasing actually. Which promise is true? Makhluq or Khaliq? Khaliq. Allah's promise always true. Allah says कि मैं ऐसे रास्ते खोल देता हूँ, ठीक है? I open several areas for you for the wealth. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Where you cannot imagine even कि कहाँ से Allah ताला रिस्क पहुँचाते हैं. Okay? Through after the charity. Second one is to purify. Zakat means to purify the wealth. So zakat is the way how to purify the wealth. It's philosophy. Philosophy of zakat is whatsoever we are earning, everyone, male or female, whatsoever she is earning, cannot guarantee that she is earning 100% halal. No one can claim. She can try, put all the efforts to earn halal and lawful. But whatsoever you do, we are, at the end of the day, we are human beings. We do mistakes. We do something against, what is demanding from us. कुछ ना कुछ इंसान से कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई गलती अपनी ड्यूटी में उससे हो जाती है. Okay? So then how to compensate? आपकी जो अर्निंग है उसके साथ कोई ना कोई ऐसा एरिया ज़रूर लग जाता है कि जिसके अगेंस्ट आपकी एफर्ट नहीं है या एनर्जी लेवल आपका डाउन है. ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाता है उसके साथ, मिसडीड्स आपके होते हैं. ठीक है.
So what is the way to purify this wealth? Allah subhanahu wa ta'ala asked to spend some portion of wealth, ठीक है जी, for the sake of Allah, and rest of the things would be purified to you. You can take it for your home, for your family. آپ جو بھی لے کے جائیں وہ پھر آپ کے لیے حلال ہونا چاہیے, آپ کے بچوں کے لیے. Understand? You know, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ wrote, two things are interconnected. دو چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں, وہ ہوتی ہی ہوتی ہیں. Cause and effect. Cause and effect. For example, halal khori and halal kari. Okay? Both are interconnected. If we eat halal, then we do halal things. Our aza and jawarih, our faculties do right and lawful things, which pleases Allah subhanahu wa ta'ala when we eat halal. Okay? Halal kari, halal khori. Khori means eating. Kari means doing. Okay? Halal khori, halal kari, both are interconnected. Same as haram khori and haram kari, both are interconnected. If feeding is haram through illegal means, ٹھیک ہے جی, کسی اور کا مال ہڑپ کرنا ہے, رشوت, جھوٹ, سود, ٹھیک ہے جی, کسی حرام ذریعے سے کوئی مال لے رہے ہیں, سو حرام خوری ہوگی تو اس کے ساتھ وہ جو فیکلٹیز جو ڈیولپ ہو رہی ہیں, جو جسم میں انرجی آ رہی ہے, وہ جو طاقت آ رہی ہے, وہ حلال کاموں میں صرف نہیں ہوگی. دس از آٹو سسٹم. وہ پھر حرام اور ناجائز, انلیگل, ان لافل, غیر شرعی چیزوں میں ہی صرف ہوگی. سو دیٹ از وائی اٹ از ریکمینڈیڈ ٹو گارڈ یور ماؤتھ, یور ٹنگ. یہ جو باہر کے دروازے ہیں, اوکے, ماؤتھ, ٹھیک ہے جی, سو ان کے اوپر پہرا بٹھانا ہے, گارڈ کرنا ہے ان کو, کہ یہاں سے جو چیزیں وٹ وی ہیئر, وٹ وی ایٹ, ٹھیک ہے جی, وہ حلال ہونی چاہیے. جب اندر حلال جائے گا تو پھر جو ڈوئنگ کیا ہوگی, حلال ہوگی. انڈرسٹینڈ؟ سو زکاة مینس ٹو پیوریفائی. سو فلاسفی کیا ہے, وائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریکمینڈ دس زکاة. سو وین یو earn anything and you spend a portion of wealth, so rest of the things would be halal for you. This is the philosophy of zakat. Next is terminological sense. What is zakat? Zakat is to spend a specific portion of wealth after the ownership of nisab for the sake of Allah. Specific portion of wealth کیا ہوتا ہے جو آپ نے اسپینڈ کرنا ہوتا ہے, اور نصاب کیا ہوتا ہے. Two things need to be clarified. Number one, specific portion of wealth, how much to spend? 2.5 out of total. Whatsoever you possess, once your year complete of the nisab, then kya karna hota hai aapne? You need to calculate of your total wealth, whatsoever you possess. You need to exclude of your loans or immediately installments, اور جو بھی آپ کے ذمے جو ڈیوز ہیں اس کو ایکسکلوڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جو ریمیننگ ہے, if it still reaches the nisab, standardized proportion of wealth, ٹھیک ہے, اب آپ نے اس میں سے 2.5 of total you need to spend, ٹھیک ہے. وہ کون سی کیٹیگریز ہے جن کو آپ نے وہ دینا ہے, زکوٰۃ کن کو دینی ہے, to whom you could give, وہ لیٹر ہم پڑھیں گے, 8 کیٹیگریز ہیں, ٹھیک ہے. So 2.5 out of total. For example, 1 rupee after each 40 rupees. Okay? 2 rupees on 80 rupees. 2.5 from 100 rupees. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. On 1,025 rupees. 1,25,000. Okay? 2.5% of total wealth, this is recommended, this is mandatory for a wealthiest person to pay for the sake of Allah. Clear hai? Specific portion of wealth to be spent. Nisab. Nisab is standardized for proportion of wealth
ठीक है जी, स्टैंडर्डाइज प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ विच समवन ऑन्स, जो भी कोई ऑन करता है या करती है, स्टैंडर्डाइज पोर्शन ऑफ वेल्थ. ये जो स्टैंडर्डाइज पोर्शन ऑफ वेल्थ है इट वेरीज, डिफरेंट होता है. इन टर्म्स ऑफ गोल्ड वो डिफरेंट है कि जिस पर आपको ज़कात लगेगी. इन टर्म्स ऑफ सिल्वर इट इज़ डिफरेंट, ठीक है. इन टर्म्स ऑफ लैंड इट इज़ डिफरेंट, ओके. इन टर्म्स ऑफ माइंस इट इज़ डिफरेंट, ठीक है. सो हर एक में वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. Let us see. In gold, what is nisab? 7.5. In silver, what is nisab? 52.5. 7.5 tolas. So, one who possess male or female 7.5 tolas gold, ठीक है, he she must pay zakat, okay. And silver 52.5 tolas silver, ठीक है. लेस देन 52.5, ठीक है, उस पर कोई ज़कात नहीं. अंडरस्टैंड, क्लियर है. क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट. You know, these days there is hell of difference between the cost of gold and silver. Big and deep gulf. ऐसे ही है ना, ठीक है जी. 1 तोला गोल्ड which is 1.5 lakh more than even 1 तोला गोल्ड, okay. Silver per tola is just a matter of few thousands, 3-4 thousands or less than that, I don't know, ठीक है. So that's mean if somebody possess 1.5 tola gold or 2 tola gold even, so actually he she has the capacity to buy this silver, 52.5 tola silver. Because gold and silver actually this is money, wealth है ना, ये माल है ना. माल किसको कहते हैं? माल की तारीफ माल मुतक़व्विम, जिसकी कीमत लगाई जा सके. So once somebody possess gold or silver, इसका मतलब ये वो wealthy है. ये तो नहीं कह सकते इस पर लिक्विड करेंसी नहीं है, पैसे नहीं है इसके पास, तो ये जनाब इसके ऊपर ज़कात नहीं. So once somebody possess for example 2 tola gold, so actually he she possess 3 lakh rupees or more than that, ऐसे है. तो इसमें 52 से भी ज़्यादा सिल्वर ही शी कैन परचेज, तो उसके ऊपर सिल्वर के हिसाब से ज़कात होगी कि नहीं होगी. मैंने ये अर्ज़ किया है कि गोल्ड एक्चुअली क्या है, मनी है. मनी की कैपेसिटी है उसके पास, ठीक है. ये तो उसकी मर्जी है ना कि उसने गोल्ड खरीद लिया, अदरवाइज उसके पास कैपेसिटी थी कि वो सिल्वर परचेज कर सकता था या कर सकती थी. जी ओके जी, दिस इज असाइनमेंट फॉर यू. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया है, अभी आपसे आंसर लेने के लिए नहीं किया. कंसल्ट विद एनी स्कॉलर, आलिम, आलिमा, जो भी मेल और फीमेल आपके कांटेक्ट में हो. अगर नहीं है तो कांटेक्ट करें, किसी से जाने थ्रू ऑनलाइन मीन्स किसी से कांटेक्ट करें, ठीक है जी. और इसका जवाब आप ढूंढ के लाएं और मुझे बताएं कि वाई. आपको दोनों तरह की ओपिनियन मिलेंगी, अंडरस्टैंड, ठीक है. ये बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है कैपेसिटी का कि उसके पास इजीली ये अवेलेबल है कि वो ख़रीद सकते हैं इतना सिल्वर, तो वाई नॉट टू पे ज़कात. ज़कात है क्या, किसी बंदे को असल में नहीं देनी, वो अल्लाह को देनी है. सो वो रिकमेंड है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेफर किया जा रहा है, आपको पुश किया जा रहा है कि भाई कोई ऐसा बहाना बनाए कि जिसके थ्रू आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करें. ये तो आपने पूछना है ना उन्हीं स्कॉलर से कि अब उसके ऊपर ज़कात है कि नहीं है. अगर वो कहते हैं ज़कात है तो फिर उसकी यही आर्गूमेंट है तो उसके पास कैपेसिटी. अगर वो कहते हैं ज़कात नहीं है तो वो कहेंगे कि भाई स्टैंडर्डाइज्ड एक सेट है अमाउंट ऑफ वेल्थ गोल्ड के लिए, उतने तक वो पहुंचेगा तभी उसके ऊपर ज़कात है, वरना नहीं है, ठीक है. तो वो दोनों तरह की ओपिनियन में आपने देखना है कि दोनों के आर्गूमेंट्स क्या हैं और कौन सी बात आपको ज़्यादा, जिसमें आपको ज़्यादा वजन लगता है, आप मुझे आके बताएं. क्लियर है? डिड यू गेट माई क्वेश्चन? ओके, अच्छा जी.
zakat of land. Land has two types: land purchased for the residence, land purchased for the cultivation. Okay, for the residence then there are two more types. ठीक है, अगर आपने कोई प्लॉट परचेज किया है, ठीक है, और वो परचेज आपने इसलिए किया है कि लेटर ऑन आपके पास कोई पैसे आएंगे तो आप उसको क्या करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे अपनी फैमिली की रहाइश के लिए, तो उस प्लॉट पर ज़कात नहीं है. अंडरस्टैंड? उस पर ज़कात नहीं है. बट इफ यू हैव परचेज प्लॉट or piece of land for the purpose of investment, you wanted to get benefit out of that, ठीक है, you wanted to sell it after 6 months, 1 year, 2 year or whatsoever, आपकी इंटेंशन ये है कि मैंने इसको सेल करना जब भी इस ज़मीन के, इस टाउन के रेट बढ़ेंगे, so then you need to pay ज़कात after every year. जो भी मार्केट का रेट है उस लिहाज से उसका रेट लगवाएं और उसका 2.5 आउट ऑफ टोटल क्या देंगे आप, ज़कात देंगे. यू नो देयर आर पीपल, वेल्दी पीपल हु बाय प्लॉट्स इन सेवरल स्कीम्स और टाउन्स. ठीक है जी, साहब का एक प्लॉट जनाब DHA में है, कोई एक लेक सिटी में है, एक वॉप्टा में है, एक जनाब अस्करी 10 में है, एक जनाब उस टाउन में है. ठीक है जी, एक फलाने बेटे के लिए, एक फलानी बेटी के लिए, एक फलाने के लिए. इस तरह से ना साहब जो कि 20-25 साल बाहर रह के आए हैं सऊदीया दुबई में, तो अब वो प्लॉट्स खरीद रहे हैं अपनी फैमिली की. कोई बुरा नहीं, ठीक है जी, आपके जनाब प्लॉट्स हैं, इधर है उधर, आपके क्यों, मेरे हैं जनाब, सिर्फ आप थोड़े मालदार हैं, मैं भी तो मालदार हूँ. ठीक है जी, तो इस तरह से प्लॉट्स हैं. भाई साहब अभी है नहीं, अल्लाह पाक जब देंगे तो फिर ठीक है जी. सो अब क्या है, इफ अ प्लॉट, ठीक है जी, फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है, बिकॉज पर्सनल यूज़ की किसी चीज़ पर ज़कात नहीं है. पर्सनल यूज़ की गाड़ी पे नहीं है, पर्सनल यूज़ घर में नहीं है, पर्सनल यूज़ की जितनी चीज़ें आपके घर में पड़ी हैं उन पर नहीं. बट जो बिजनेस पर्पस के लिए बिजनेस एसेट्स हैं उनके ऊपर क्या होती है, ज़कात होती है. ठीक है, इस तरह से जो रेंटल अमाउंट है वो अमाउंट के ऊपर ज़कात है, उस एसेट के ऊपर ज़कात नहीं है. लोग अपना घर या कोई चीज़ जो है ना वो किराए पे दे देते हैं. अब उस घर की कॉस्ट पे ज़कात नहीं, बल्कि वो जो अमाउंट ऑफ रेंट आ रही है ना उसके ऊपर ज़कात है. उसमें भी ये है कि अगर बाय द एंड ऑफ द ईयर, अगर पूरा साल गुजर जाता है, आपने उसको किराए पे दिया हुआ था, अगर तब तक अगर आप साथ साथ खाते रहें, कंज्यूम करते रहें, तो जाहिर अब कुछ बचे ही नहीं, तो ज़कात किस चीज़ की. लेकिन अगर वो अमाउंट आपके पास है तो फिर अब उसकी, उस रेंट की अमाउंट के ऊपर ज़कात होगी, उस एसेट के ऊपर ज़कात. यू गेट दैट? सो ज़कात किस पर होती है, गोल्ड पर होती है, सिल्वर पर होती है, लिक्विड कैश पर होती है और बिजनेस एसेट्स पर होती है. क्लियर है? बिजनेस एसेट्स, माल तिजारत के जहां से आप मुनाफा कमाते हैं उसके ऊपर ज़कात हो. क्लियर है? सो ज़कात इन लैंड हो गया जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए होती है. ठीक है, सेकंड वन है कल्टीवेशन. जो लैंड लोगों के पास होती है, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स होते हैं, ज़मींदार होते हैं, ठीक है, उनके पास बड़ी एकड़ों में उनके पास, ठीक है जी, ज़मीन होती है उनके पास, यहाँ पंजाब में, सिंध में, KP में. ठीक है, कई सारे लोग हैं जिनके पास, ठीक है जी, इनहेरिट करते हैं, नौजवान बच्चे बच्ची होते हैं, उनके हिस्से में जनाब इतनी लंबी ज़मीन आई होती है. ठीक है, अब उनको ज़कात के मसाइल का पता ही नहीं होता. ठीक है, तो अब वो क्या है, वो सारा गुनाह पेरेंट्स के ऊपर जाएगा कि भाई ज़मीन तो दे दी, आपने उनको तरीक़ा नहीं सिखाया शरीयत का, अल्लाह का हुक्म क्या है उसके अंदर. आपको पता है ना, वो बारिश आती है और वो आंधी तूफान आते हैं, फसल तैयार खड़ी होती है, सारी की सारी लेट जाती है, सारा लोगों का गल्ला तबाह हो जाए. क्यों भाई? अल्लाह का हक नहीं अदा किया आपने इसकी, अल्लाह को ज़रूरत नहीं. ठीक है, पूरे लोग, पूरी कम्युनिटी सफ़र करती है. ठीक है, आई गारंटी यू, इफ एवरी सिंगल वेल्दी पर्सन और लैंड लॉर्ड फ्रॉम द पाकिस्तान ओनली is 100% remain committed to pay zakat or ushr. ठीक है, I swear God, just matter of 1 year, poverty would be vanished from Pakistan. But people are not, वो तो they are unaware of zakat or they are not ready to pay zakat. Honesty with the commitment. No, they are not ready to pay zakat. उनको किसी ने सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं उनको.
अच्छा, जो कल्टीवेटेड लैंड है, ज़ाहिर है जो नॉन कल्टीवेटेड होगी तो उसके ऊपर तो ज़कात है ही नहीं, क्योंकि वो उस पर कुछ उगा ही नहीं रहा, कल्टीवेट ही नहीं हो रही, कोई बैरन लैंड्स होती हैं, इनफर्टाइल होती हैं, अंडरस्टैंड, उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है, ठीक है. बट इफ़ दिस इज़ कल्टीवेटेड लैंड, उस पर आपने कुछ भी कल्टीवेट किया, ठीक है जी, आपने उसके ऊपर जनाब वीट लगाई है, बादले हैं, कोई फ्रूट्स हैं, कुछ भी, ठीक है, वट्स एवर इट कल्टीवेटेड, तो उस पर जो ज़कात होती है, दिस इज कॉल्ड उशर. ज़मीन की ज़कात को क्या कहते हैं? उशर. उशर मीन्स 1/10. 1/10. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन कल्टीवेट, ठीक है जी, 100 मन, एक मन के अंदर कितने केजेस होते हैं? 40 केजेस होते हैं, ठीक है, 40 केजी. पीस ऑफ लैंड से 100 मन वीट उसने कल्टीवेट किया. अब 100 मन का उशर कितना बनेगा? 10 केजी. 10 10 मन उसमें से, ठीक है, 10th पार्ट है ना आउट ऑफ टोटल जितने भी होंगे, ठीक है जी. अब उसके ऊपर इतना देना क्या है? ज़रूरी है. व्हाट पीपल डू, दे स्टोर ऑल ऑफ द कल्टीवेटेड थिंग, स्टोर कर लेते, ठीक है जी. ज़कात की कोई फिक्र नहीं है, उसके ऊपर जो उशर है, जो अल्लाह का हक़ है, अल्लाह से आतो हक़ यौम हसादी, इन सूरतुल अनाम जुज़ 8, अल्लाह क्लियरली से orders وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, the day you cultivate, give Allah's right, حَقَّهُ, हालांकि आपने अल्लाह को नहीं देना, अल्लाह की मखलूक को देना है, बट अल्लाह से حَقَّهُ, मेरा हक़ है. तुमने तो छोटा सा बीज लगाया था ना, उसको तनावर दरख्त किसने बनाया? तुमने बनाया. कितने लोग जो बीज लगाते हैं लेकिन उनका कुछ नहीं होता. अल्लाह से दिस माय राइट, मैंने तो अभी तुम्हारे से थोड़ा थोड़ा मांगा है, 10% आउट ऑफ टोटल कल्टीवेट, ठीक है. लोग क्या करते हैं? सारा कुछ स्टोर करते हैं, ठीक है, और वेट करते हैं कि प्राइस हाई हो जाए और मार्केट में चीज़ शॉर्ट हो जाए. जब हाई होती है तो मार्केट में भेजते हैं, और वो भी थोड़ी अमाउंट में भेजते हैं ताकि लोग मजबूर हों उसको महंगा लेने पे, ठीक है. फिर क्या करते हैं? उसको बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, मुनाफा कमाते हैं. जब मुल्क में शॉर्टेज हो जाती है वापस खरीदते हैं अपनी ही चीज़, मुनाफा कमाते हैं, फिर पब्लिक को देते हैं, शॉर्टेज होती है, फिर मुनाफा कमाते हैं. 400 जगह पे मुनाफे भी कमाओगे, अल्लाह इतना गाफिल तो नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो फिर होगा ना. जब मखलूक पे इतनी तंगी होगी अल्लाह की मखलूक पे, तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा. सो कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड उशर. अच्छा, इसमें देन देयर आर 2 more टाइप्स है, 2 more टाइप्स इन द कल्टीवेटेड लैंड. कल्टीवेटेड जो लैंड होती है, इट इज़ एक्चुअली इरिगेटेड, ठीक है. उसको जो पानी लगता है वो 2 तरीक़ों से लगता है. इरिगेटेड बाय पम्प्स एंड कैनाल्स, कि जिसके ऊपर यू नीड टू पे इट्स कॉस्ट, वाटर की कॉस्ट देनी पड़ती है ना, जो भी ऑनर होता है उसका, ठीक है. अगर आप में से किसी कोई इस बैकग्राउंड से है तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए उसका, ठीक है. सो इधर इट इज़ इरिगेटेड थ्रू कैनाल्स, ठीक है, या बाज़ दफ़ा कैनाल्स का पानी भी कम हो जाता है तो फिर लोग वाटर पंप्स होते हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन में लगाए होते हैं, तो जाहिर है कि उसके ऊपर अब उनको कॉस्ट पड़ रही है, अच्छी खासी पड़ रही है, ठीक है. तो अब उस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कट हिज राइट इनटू हाफ. अब हाफ उशर होगा. इफ़ ही शी इज़ बेरिंग द कॉस्ट ऑफ वाटर, अब हाफ उशर होगा, ठीक है. मीनवाइल अब 20th पार्ट होगा, अब 10th पार्ट की होगा. 20th पार्ट मीन्स पहले 100 मन में से 10 मन था, अब 100 मन में से 5 मन होगा. अंडरस्टैंड? हाफ उशर हो जाएगा बिकॉज उसने कॉस्ट पे किया. इफ इट इज इरिगेटेड थ्रू रेन्स, कि जहाँ पे कैनाल्स का सिस्टम ही नहीं है, फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान या कुछ और इलाके हैं, ठीक है जी, सदर्न पंजाब से आगे, और केपी के कुछ इलाके भी हो सकते हैं, या जो माउंटेन एरियाज होते हैं, हिली एरियाज होते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे अब क्या है, कैनाल्स का प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, दे जस्ट डिपेंड ऑन द रेन, ठीक है. तो जो थ्रू रेन आ रही है, जिसमें आपको कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ रही वाटर की, अब उस पर फुल उशर. क्लियर? यू गेट द डिफरेंस? फुल उशर है उसके ऊपर. अच्छा जी, माइंस, ठीक है जी,
if जनाब someone, ठीक है जी, buy a piece of land, ठीक है जी, रेजिडेंस पर्पस के लिए उसने बाय की थी, लेकिन उसमें से जनाब तेल का कुआं निकल आया जनाब, कितना खुशकिस्मत आदमी है वो, ठीक है। या उसमें से जनाब कोई सोना चांदी के बीच में से कोई माइन निकल आई है, कान निकल आई है कई सारे ऐसे इलाके, ठीक है। दिस इज सेपरेट डिबेट के वो क्यों हमें डिग आउट नहीं करने देते, बिकॉज वी आर पुअर कंट्री, हमारे ऊपर काफ़ी सारी सैंक्शंस हैं, चेक्स हैं, हमारे पास जो मॉडर्न मशीनरी नहीं है, हम जो है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है, हम कर नहीं सकते। अदरवाइज आवर लैंड इज फुल विद दीज नेचुरल रिसोर्सेज, यार हम कर नहीं सकते। इंटरनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है, उनकी तरफ से बैन लगता है, वो हमें नहीं करने देंगे बिकॉज हम अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। तो हमारे पास कोई ताकतवर लीडर नहीं है जो हमारा केस इस तरह से फाइट कर सके, उनको बता सके कि नहीं हम इंडिपेंडेंट होना चाहते। दिस इज सेपरेट थिंग। बट जनाब निकल आती है किसी की ज़मीन में से, ठीक है जी, खुश, तो अब क्या होगा, उसको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा जनाब, 1 साल निकलेगा तो 1/5, दिस इज कॉल्ड हुमस। हुमस, हुमस मीन्स 1/5 ऑफ टोटल जो उसमें से उसने कमाया है, वो उससे बतौर ज़कात के कलेक्ट किया जाए। क्लियर है? 1/5। परेशान तो नहीं होगा मेरी बातों से? ठीक है जी। अच्छा जी, I think this is done. We should have at least 2 presentations today.